So first of all, we do have to understand the fundamentals of firewalls, like how the firewall work, different types of firewalls, all these things. Meanwhile, if you guys have any specific questions, so you can do ask. And what we do in this training, we do try to correlate with Palo Alto as well, because you already uh, done Palo Alto, so it's good. It's good to have a comparison between two firewalls. So if I do talk about FortiGate, so FortiGate is one of the most prominent firewall in market. As of now, FortiGate having #1 position. FortiGate आपको market में #1 पे चल रहा है. And different physical models we have in FortiGate. FortiGate do supports your physical models as well, virtual series also we have. So normally you will see 40F series nowadays. It's a very small series of firewall. 60F, 80F, 100. Okay, they will joining soon. So guys, we have a different physical models and series. So 60F, 40F, 80F, 100F. These are the physical series and models. Apart from that, FortiGate also do provide VM series or virtual series devices like VM 100, VM 0 series, VM 50, all these we get. And it do supports all your deployments, including Azure, AWS as well. It also do supports your VMware ESXi based. So lots of features and options we have. If we do talk about deployment perspective, so it is having almost all deployments, physical on-site deployments as well, cloud-based deployment. And FortiGate is fully next generation firewall, NGFW. So if I do talk about next generation firewalls, so next generation firewall will do perform lots of things. The very first thing, all next generation firewalls do perform traffic inspection from layer 2 to layer 7. So FortiGate is also your next generation firewall. So if I do talk about inspection process of FortiGate, so it do inspect everything from layer 2 to layer 7. So normally if I'm saying layer 2 means it do inspect your MAC address properly. It do check MAC address information along with VLAN tag and all ether type values. If I do talk about layer 3, so layer 3 ka matlab hai it do inspect your IP address, IP protocol number, IP address, DSCP field. All these it can do verify properly, and based on that it can either do allow or deny. And guys, layer 4 is all about your TCP UDP inspection. So TCP port number, UDP port number, they do inspect here on layer 4. So if I say L4 inspection, so normally L4 inspection is based on port number. And all application level inspection can also do perform. And application inspection it do perform on layer 7. So layer 7 पे आपका सारा application जो भी है वो inspect करता है FortiGate firewall. So FortiGate firewall, it means inspect your traffic up to layer 7. It can do recognize application. Along with this, guys, FortiGate firewall or any next generation firewall can also do inspect your payload. Payload basically, payload means actual data.
Payload means actual data. Let's say if you are sending a text message to someone, or you are sending voice message or video message, so it's all part of your payload. So these all inspections can be performed. So layer 2, layer 3, layer 4, layer 7. At all layer it do perform inspection. Different types of inspection it do perform. So simply how it do matches your traffic. Let's do understand. So let's say if you're saying, if you're configuring one particular rule on firewall, and you are saying like, if source is this 10.1.1.1.10, and you're also saying if destination is this, destination port is 443 plus 80. Let's say you are configuring one rule, and you are saying application is Facebook. So traffic should be denied or drop. So how exactly do work in this case? So first of all, if it is trying to match, let's say you've done configuration of one rule and you are trying to match this on firewall. So when traffic comes to firewall, firewall will do match source IP. So in order to match source IP, on which layer it do check? It do check on layer 3. In order to match your IP address, it always do check layer 3. So guys, it will do check layer 3 header, and based on layer 3 header, it do verify whether the source IP is 10.1.1.10 or not. If IP is having 10.1.1.10, then it will do match. The next condition is port number. So here I'm trying to match TCP port 443 and 80. So again, when it comes to TCP, firewall will do check port number 443 and 80. If particular packet having match port 80 and 443, then it do match. But along with this source IP, if this source is having this port, then it do match. And last thing it is trying to match, which is application. So let's say application is Facebook. If you're trying to access Facebook, so it will do check your HTTP header, and based on HTTP header, it will do verify whether the application is Facebook or not. So normally, if you do try to use HTTP based applications, so HTTP GET request we do use to access application. And under this HTTP GET request, we see host field. And here we get the URL. Like if you're trying to use Facebook, so here you get under host field facebook.com. So here it will do match the application name, and based on that it do deny. So guys, in this example, we understand like firewall will do match layer 2, layer 3, layer 4, and layer 7. So as all devices uses TCP IP model, and TCP IP model only having 4 layers. So that's how your all 4 layers firewall to match. That's the exact way of matching. Firewall first do try to match layer 2, layer 3, layer 4, and application. And if you're trying to access, let's say if you're trying to match other things, you are trying to check the payload. Payload means data, actual data. Let's say you are carrying, or you have attachment of PDF file. So that's your payload. So how the firewall will do verify whether this payload is having clean or having any malicious script or any malicious thing within this file?
So firewall to perform several other functions. One of them is antivirus function. So if you do enable antivirus function along with layer 7 inspection, firewall will do perform antivirus inspection. If you do enable IPS feature, which is intrusion prevention system, so firewall will do perform inspection of traffic based on signature. So IPS is basically intrusion prevention system and it's based on signatures. So IPS will do prevent your attacks based on signatures. And the signatures we only have for known attacks or known vulnerabilities. Apart from that, if you apply here SSL inspection, SSL, or if you do apply here TLS inspection, so if traffic is encrypted, so firewall to decrypt that traffic, and based on decryption, it do a check. Further, firewall also to perform other functions like URL filter, application controls. So if you want to block particular URL or application, so that also you can do perform. File blocking feature is there. So file blocking feature also we can do apply. DOS, DDoS related policies also we can do apply. As well for 0-day attack, it do uses FortiSandbox sandbox or FortiCloud. So all these features we get within firewall. So guys, here if you see, and so simply guys, we can say firewall is kind of device which can do inspect your traffic, which can check your traffic, and based on that, firewall can either do allow or deny. Now you have a broader perspective of firewall, like how the firewall actually inspect your traffic. So whenever traffic comes to firewall, it always do inspect, and based on inspection, it can do either allow or deny. Let me show you the exact slide. See, that's a slide. So firewall will do perform inspection of traffic up to layer 7. It can do understand port, IP, MAC address along with application. Apart from that, firewall can also do recognize your payload part. So how payload part it will do check? For payload inspection, it do apply these separate process, which is antivirus, IPS, SSL, file blocking feature, DDoS, FortiSandbox, all these it do apply. As well, it can also do apply DNS filters if particular malicious DNS you are trying to access. So that also we can do block. So all these things we can do apply here on firewall. I have told you here one thing, like firewall will recognize the traffic. So now you have understanding like firewall, how the firewall work, or how firewall do inspect or recognize your traffic. So let's say this is your internet, and there is one client which is behind the firewall.
and there is one server, which is, let's say, Facebook server, and it is having IP 10.1.1.1. Now, as I told you guys, firewall is a kind of device which inspect or which check your all traffic which is going on flowing through the firewall. So let's say firewall has to identify whether the traffic is for Facebook, whether the traffic is based on Gmail. So how exactly firewall will know? फायरवॉल को कैसे पता चलता है कि ये फेसबुक का ट्रैफिक या जीमेल का? कैन एनीवन टेल मी नाउ? So again, to understand, like, you guys have understanding or not? Anyone want to? सर क्या एक बार फिर से बताना आप क्या पूछ रहे हैं? मान लो अगर आप यहाँ पे बैठे हो लैन में, एंड इट्स योर लैन पोर्ट, सी, ये आपका लैन है, लैन लिंक, एंड इट्स योर वैन लिंक। अगर आप चलाते हो कोई फेसबुक वेबसाइट आपने चलाई या जीमेल चलाया, ट्विटर चलाया, देन हाउ फायरवॉल विल डू रिकॉग्नाइज? फायरवॉल को कैसे पता चलता है कि ये एप्लीकेशन फेसबुक का ही है, या आप बोलते हो कि यार फेसबुक को ब्लॉक करो, तो फायरवॉल को एग्जैक्टली कैसे पता चलता है यार फेसबुक ही कैसे ब्लॉक होता है? व्हाई नॉट जीमेल गेट ब्लॉक्ड? क्या मतलब वो चेक करता है एग्जैक्टली? दैट्स आई वांट। सर हम सिक्योरिटी प्रोफाइल जो लगाते हैं हम वहाँ पे यूआरएल कैटेगरी में। इट्स ऑलरेडी अलाउड, सी, एवरीवन कैन डू स्पीक। rename, start video, rename themselves, unmute, all options. वो तो हो गया लगाने का, बट हाउ एग्जैक्टली डू चेक? या संदीप, कैन यू जस्ट चेक इट अगेन? संदीप कुमार, you just have to unmute yourself, then you can speak. Okay, I think you have some setting issues, just check it. Rest people can also unmute. Guys, you all can give your input. संदीप नायक अनुभव अनम्यूट नहीं हो रहा उनका, आई थिंक। अनुभव आवाज आ रही है सर? हेलो, हाँ आवाज आ रही है, लोग डेस्टिनेशन मैच करेंगे। We are unable to unmute. हाँ लोग कैसे बताओ, कैसे पता लगेगा? तो आईपी एक्टिविजन से जो आईपी बेस्ड आईपी आती है तो वहाँ से चेक कर लेता है। आवाज ही नहीं आ रही सर, फायरवॉल ये आईपी बेस्ड चेक कर लेते हैं ना, आईपी में इंस्पेक्ट करके। आईपी से कैसे पता चलेगा एप्लीकेशन? आईपी से नहीं पता चलेगा। बेस्ड ऑन एप्लीकेशन सिग्नेचर, इन्होंने एक आंसर दिया, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन सिग्नेचर्स। बेस्ड ऑन एप्लीकेशन सिग्नेचर दैट्स फाइन, बट सिग्नेचर्स भी तो मैच होंगे। मान लो आपने एक सिग्नेचर बना दिया, देखो, एक मैं आपको आइडिया देता हूँ, और ये है, मान लो सिग्नेचर है फेसबुक का फॉर एग्जांपल। अब इसके अंदर आपने सारा मैच बना दिया, ये मान लो सिग्नेचर 1 हो गया जो फेसबुक का है। अब फायरवॉल के डेटाबेस में है, ट्रैफिक आपने एक्सेस किया फेसबुक का, तो ट्रैफिक को कैसे, ट्रैफिक के अंदर क्या चेक करेगा? ट्रैफिक के अंदर जब उसको पता चलेगा कि फेसबुक है तभी सिग्नेचर अप्लाई करेगा ना। ट्रैफिक में कैसे उसको पता चलेगा? दैट इज क्वेश्चन। ट्रैफिक के अंदर जो ट्रैफिक आ रहा है, जो हेडर्स लगे हैं, लेयर 2 हेडर, लेयर 3, उसमें से क्या चेक करेगा? उसको पता चलेगा फेसबुक है या नहीं। सर ये लेयर 7 हेडर एक्चुअल पेलोड डेटा जो है वो चेक करेगा। और लोग बताइए। क्योंकि जो हमारा एप्लीकेशन काम करता है वो लेयर 7 पे है, तो ये लेयर 7 पे चेक करेगा और हमारी पॉलिसी में चेक करेगा हमने पॉलिसी क्या लगाई, अलाउ या डिनाई की, उस बेसिस पे ब्लॉक करेगा ये।
हाँ, तो एक चीज आपको ये समझ में आ रही है कि जब भी ट्रैफिक चेक होगा तो ट्रैफिक दो चीजों से मिलके बनता है। पहली चीज क्या, हेडर। हेडर के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन होती है? हेडर अपनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लगता है। मान लो कि आपने लेयर टू हेडर लगा दिया, ये लेयर टू हेडर है। लेयर टू हेडर बहुत ही सिंपल होता है। सो लेयर टू हेडर ओनली हैविंग सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, ईथर टाइप, और अगर वीलैन टैगिंग है तो वीलैन टैग लग सकते हैं। एंड लेयर थ्री हेडर, लेयर फोर हेडर। हेडर्स क्या रखते हैं? स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। अगर लेयर थ्री हेडर है तो आईपी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। लेयर टू हेडर है, मैक एड्रेस की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेयर फोर हेडर है, इट डू कीप योर टीसीपी यूडीपी बेस्ड इन्फॉर्मेशन। और अगर आपका लेयर सेवन है तो ये सारा हेडर किसके बारे में रखेगा? एप्लीकेशन के बारे में। बट यहाँ पे एक और ट्विस्ट आता है, मेन जो है, एप्लीकेशन जैसा आप फेसबुक चलाते हो, जीमेल चलाते हो, तो क्या होता है कि आफ्टर थ्री वे हैंडशेक एसएसएल इंस्पेक्शन होता है, मतलब एसएसएल फंक्शन स्टार्ट हो जाता है और सारा ट्रैफिक इनक्रिप्ट हो जाता है, तो लेयर सेवन हेडर भी इनक्रिप्ट हो जाता है। करेक्ट। अब यहाँ पे पता नहीं चल पाएगा फायरवॉल को भी कैसे चल रहा है, लेकिन फिर भी फायरवॉल आपका ब्लॉक करता है। हाउ? उससे भी पहले एक और बेसिक मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ और उसका आंसर भी आपको बताता हूँ। मान लो यही सारी चीजें फंडामेंटल जो आपका बेस फायरवॉल के पर्सपेक्टिव ट्रबल शूटिंग एज वेल अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करेगा। लेट्स हैव अ फायरवॉल हियर, एंड अ फायरवॉल इंटरनेट से कनेक्टेड है एंड इट्स योर वैन लिंक। फायरवॉल में जो सेग्रीगेशन होता है वो तीन लिंक्स होते हैं, लैन, वैन एंड डीएमजी। सो डीएमजी इज टू यूज टू कनेक्ट सर्वर्स। मान लो यहाँ पे एक सर्वर है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या यूजर्स हैं। अब मान लीजिए इसका आईपी 10.1.1.1.10 एंड दिस यूजर हैविंग आईपी 10.1.20। अब यहाँ पे एक सर्वर है इंटरनेट पे, दिस इज योर सर्वर, लेट्स से इट्स twitter.com। अब अगर आप ये एप्लीकेशन यहाँ से चलाने की कोशिश करते हो, मान मान लेते हैं यहाँ पर आपने लिखा क्या, www.twitter.com। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि कितने पैकेट्स इनिशिएट होंगे, कितने पैकेट बनेंगे, या कितने पैकेट इस एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए आप मतलब खोलोगे ब्राउजर पे, जैसे आप डालोगे तो कितने पैकेट्स जाएंगे, कितने पैकेट एक्सचेंज होंगे, और क्या क्या चीजें फायरवॉल पे अलाउ होनी चाहिए। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, इफ यू वांट टू अलाउ वेब ब्राउजिंग ऑन फायरवॉल, आपको किसी ने बोला कि खाली वेब ब्राउजिंग अलाउ कर दो, तो क्या क्या नेसेसरी चीजें हैं जो अलाउ होनी चाहिए। आपको पूरा एनी नहीं ओपन करना है, यू हैव टू जस्ट अलाउ वेब ब्राउजिंग, कि सारे यूजर्स ब्राउज कर पाए। कौन कौन से पोर्ट्स ओपन होने चाहिए फायरवॉल पे, क्योंकि आप सब ऑलरेडी पोर्ट सर पोर्ट 80, पोर्ट 443 एंड डीएनएस। यस, इन्होंने सही बताया। सो ये पोर्ट्स हैं ऑलरेडी जो ओपन होने चाहिए अगर आप किसी भी इंटरनेट अलाउ करना चाहते हो तो 443। अब इसका लॉजिक क्या है, इसके लॉजिक को भी आप समझ सकते हो, और कोई एप्लीकेशन अगर आपको खोलना होता है इसी तरीके से आप पोर्ट्स को भी वेरीफाई करते हो, उस पोर्ट पे हिट आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम्स है। तो अगर आपको इंटरनेट चलाना है और इंटरनेट ब्राउजिंग अलाउ करनी है, नॉर्मली अगर आप कहीं पे इंटरनेट देते हो तो डोंट गो विथ एनी, जस्ट डू अलाउ फ्यू थिंग्स। इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए आपको टीसीपी 80, टीसीपी 443 एंड डीएनएस यूडीपी 53, यूडीपी 53 आपको ये अलाउ करना है। अब इससे होगा क्या, इंटरनेट पे जितनी वेबसाइट्स हैं, इधर वेबसाइट्स हैविंग पोर्ट 80 बेस्ड और 443। अब सबको पता होगा कि जब भी आप वेबसाइट्स को ओपन करते हो तो यू मे गेट अ लॉक, एसएसएल लॉक यहाँ पर आता है एक, जैसे मैंने ये ओपन किया है ये आ रहा है, तो इट इज एक्चुअली योर एसएसएल बेस्ड वेबसाइट्स, नॉट सिक्योर लिख के आता हो पोर्ट 80। तो जितनी वेबसाइट्स है आज के डेट में वो या तो पोर्ट 80 बेस्ड होंगी या 443। और वेबसाइट से एप्लीकेशंस को आप एक्सेस कैसे करते हो, बेस्ड ऑन नेम, वी नेवर डू यूज आईपी। सो जब भी आप क्या करते हो
लेट्स से यू आर ट्राइंग टू एक्सेस twitter.com. सो सिंपली ट्विटर का आईपी आप सर्च करते हो. अब आईपी लुकअप प्रोसेस भी दो टाइप्स का डीएनएस के अंदर. मान लो आपने डीएनएस ट्विटर पहले से ओपन किया हुआ है, तो आपके पास क्या होगा कि डीएनएस रिकॉर्ड होगा इस मशीन के अंदर, जिसको हम बोलते हैं क्या, कैसे? डीएनएस होस्ट कैशे. अगर आपने वो वेबसाइट पहले से ओपन कर रखी है तो ये आपको इसी रिकॉर्ड के अंदर मिल जाएगा, तो आपकी डीएनएस रिक्वेस्ट बाहर नहीं जाएगी. एंड इफ यू आर ट्राइंग टू एक्सेस फर्स्ट टाइम और यू आर ट्राइंग टू एक्सेस वेरी फर्स्ट टाइम, सो ये रिक्वेस्ट डीएनएस सर्वर के पास जाएगी. लेट्स सपोज दिस इज आवर डीएनएस सर्वर एंड इट इज 888. ये मेरा इंटरनेट डीएनएस सर्वर है, तो ये मुझे एक आईपी एड्रेस देगा. मान लो ट्विटर का आईपी है 111. वी गेट दिस आईपी. एक बार ये आईपी मिल गया तो अब क्या होता है कि विल डू ट्राई टू परफॉर्म कनेक्शन विद ट्विटर. अब ट्विटर के साथ एप्लीकेशन आपका ट्विटर 443 पे चलता है, 80 पे चलता है, तो आपने क्या किया, कनेक्शन बनाया. तो कनेक्शन बनाने के लिए आपका क्या होगा, ट्विटर के पास अब ये ट्रैफिक इनिशिएट करेगा. एंड गाइज, जितना भी कनेक्शन बनेगा टीसीपी बेस्ड, यू कैन रिमेंबर टीसीपी बेस्ड कनेक्शन इज टोटली रिलायबल. जितने भी टीसीपी बेस्ड कनेक्शन बनेंगे उसमें हम 3 पैकेट्स एक्सचेंज करेंगे. उससे भी पहले आप समझ लो टीसीपी क्या बोलता है कि आपके जो कनेक्शंस है, आपके कनेक्शंस हमेशा क्या होंगे टीसीपी के अंदर, either you do try to build connection or you do terminate connections. TCP connections आप जब बनाओगे यहां से फायरवॉल की स्टोरी स्टार्ट होती है और एक बोलते हैं टर्मिनेशन. So when you want to build connection, so this particular process we call three-way handshake. कनेक्शन बनाने को प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थ्री वे हैंडशेक या कनेक्शन बिल्ड करना. किसी भी एप्लीकेशन को जो आप टीसीपी बेस्ड होगा उसमें 3 पैकेट एक्सचेंज होंगी कनेक्शंस को बनाने के लिए, उसके बाद ही डेटा एक्सचेंज होगा. और ये पैकेट्स क्या होते हैं, सिंक्रोनाइजेशन और टीसीपी सिन, सिंक्रोनाइजेशन प्लस एक्नॉलेजमेंट एंड एक्नॉलेजमेंट. सर ये एक सेम एप्लीकेशन के लिए एक ही बार परफॉर्म करेगा ना 3-वे हैंडशेक, बार बार तो परफॉर्म करेगा नहीं, पर्टिकुलर एक होस्ट के लिए, एक सोर्स के लिए. क्लोज नहीं कर देते हो तब तक. और दूसरा होता है कनेक्शन क्लोज करने के लिए. जब आप क्या करते हो, कनेक्शन टीसीपी का क्लोज करते हो तो उसमें 4-वे हैंडशेक होता है. तो आपसे कई बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, या दोज हु वांट टू नो कि आपको बेसिक्स क्लियर है या नहीं फायरवॉल्स के रिगार्डिंग या किसी भी डिवाइस के रिगार्डिंग, सो दे डू आस्क दीज थिंग्स, क्योंकि ये सारी चीजें फायरवॉल से रिलेटेड ही है. और अगर आपने फायरवॉल पे कैप्चर लगाया एंड यू आर नॉट गेटिंग पैकेट्स आफ्टर सीन, इसका मतलब क्या है. अब जैसे मैं आपसे ही पूछूं, आपने फायरवॉल्स पालो अल्टो पढ़ लिया सिंपली, अब यही क्वेश्चंस है इसके रिगार्डिंग ही. अगर मान लो फायरवॉल पे आपको दिख रहा है क्या, इनकम्प्लीट पालो अल्टो लॉग में, पालो अल्टो लॉग में आपने देखा कि यार एक कनेक्शन नहीं बन रहा है एंड इट्स शोइंग इनकम्प्लीट. सो व्हाट डज इट मीन, ये आपने देखा पालो अल्टो लॉग में आपको दिख रहा है कि इनसफिशिएंट. सो व्हाट डज इट मीन, दैट मींस 3-वे हैंडशेक परफॉर्म नहीं कर पा रहा. और लोग बताइए. अगर आपको इनकम्प्लीट दिख रहा है, क्योंकि ये बहुत बेसिक ट्रबल शूटिंग है, जब आप फायरवॉल बैठोगे तो लॉग में यही सब दिखेगा. तो अगर आपको कभी भी ये इनकम्प्लीट दिख रहा है, इसका मतलब क्या, कनेक्शंस नहीं बन रहा, मतलब 3-वे हैंडशेक आपका हो ही नहीं रहा है. इधर क्या हो रहा है, मैं सिन का पैकेट भेज रहा हूँ, सर्वर से सिनैक नहीं आ रहा है, या सिनैक आ जा रहा है या हैक नहीं आ रहा है, जिसको बोलते हैं हाफ कनेक्शन, मतलब आधा कनेक्शन बन रहा है बट इट्स नॉट गेटिंग कंप्लीट. सो हमेशा पालो अल्टो आपको लॉग में देता है इनकम्प्लीट. सिमिलरली आप FortiGate में भी देखोगे तो वो कनेक्शंस आपको क्या दिखाएंगे, आधे ही दिखेंगे.
इसका मतलब क्या है कि बेसिकली आपका कनेक्शन या तो ब्लॉक हो रहा है या फायरवॉल के थ्रू पास होने के बाद वो एप्लीकेशन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। या कई बार आपको फायरवॉल में मिलता है कि आपने मान लो एक क्लाइंट मशीन से एक सर्वर को इनिशिएट किया, बीच में आपका क्या है, फायरवॉल है, यहाँ से कनेक्शन इनिशिएट किया, मान लो आपने पोर्ट 8080 के लिए कनेक्शन इनिशिएट किया, आपने सिन का पैकेट भेजा और आपको सर्वर साइड से क्या मिल गया, रीसेट RST। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये पोर्ट ओपन नहीं है, यहाँ पर ये पोर्ट आपका ओपन नहीं है, रीसेट मारा कनेक्शंस को, RST। तो सर्वर साइड पे नहीं ओपन होगा ना? हाँ जी, सर्वर उस पर लिसन कर ही नहीं रहा है। तो ये चीजें आपको मतलब काफी इंपॉर्टेंट होती है। इनकम्प्लीट का मतलब मैंने आपको बता दिया, 3-वे हैंडशेक कंप्लीट नहीं। अगर आपको आ रहा है इनसफिशियंट, तो इसका मतलब 3-वे हैंडशेक तो कंप्लीट हो जा रहा है, बट आफ्टर 3-वे हैंडशेक यू विल नॉट सी एनी अदर पैकेट। 3-वे हैंडशेक कनेक्शन बनने के बाद और पैकेट आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आपका कनेक्शन पूरा कंप्लीट होने के बाद कुछ डेटा ट्रैफिक इसका मतलब नहीं एक्सचेंज हो रहा है, एंड फायरवॉल उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, तो इट विल गिव यू इनकम्प्लीट। तो सेम FortiGate भी में भी इसी तरीके का बिहेवियर होगा। सो FortiGate क्या करेगा, ऑलवेज, या कोई भी फायरवॉल होगा, अब ये चीजें आपको पता इसलिए होनी चाहिए बिकॉज लेटर वंस वी डू अंडरस्टैंड स्टेटफुल फायरवॉलिंग, तो जो कनेक्शंस के रिकॉर्ड को यहाँ पे रखता है फायरवॉल, उस चीज को आप समझ पाओगे। तो आपको पहली चीज पता चल गई कि जब भी आप वेब ब्राउजिंग अलाउ करोगे, सो व्हेनेवर यू वांट टू अलाउ वेब ब्राउजिंग, जस्ट डू मेक श्योर दीज पोर्ट्स मस्ट बी ओपन ओनली, आपको एनी नहीं करना है। एंड वंस these ports open, तो आपका ब्राउजिंग आसानी से हो जाएगा इजीली। एंड ब्राउजिंग करने के इनिशियल स्टेप्स क्या है, फर्स्ट वी डू सेट DNS रिक्वेस्ट, DNS के रिस्पॉन्स में हमें IP मिलता है, आफ्टर देन हम कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, और वो प्रोसेस हमारा क्या होता है, 3-वे हैंडशेक। अब ये क्लाइंट मशीन आपका सिन का पैकेट भेजेगी, इसमें भी काफी डिटेल्स है, धीरे धीरे हमें पता चल जाएगा। और इन रिस्पॉन्स टू दिस हमें जो सर्वर है वो क्या भेजता है, सिंक्रोनाइजेशन प्लस एक्नॉलेजमेंट, और फिर यहाँ से क्लाइंट से एक और एक्नॉलेजमेंट जाता है, और ये आपका क्या होता है, 3-वे हैंडशेक कंप्लीट। तो फर्स्ट पैकेट सिन का होता है, सेकंड सिनैक, एंड थर्ड हैक। सो 3 पैकेट्स आपने एक बार एक्सचेंज कर लिए, उसके बाद डेटा आपका स्टार्ट हो जाता है, डेटा का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। पर मतलब इसमें जैसे हम यूडीपी पे बात करें, तो जब हम जैसे पोलोटो पे लॉक्स देखते हैं उसके, तो यूडीपी में 3-वे हैंडशेक नहीं होता है, तो हम कैसे उसको मतलब ये कहेंगे कि नहीं ये डेस्टिनेशन से प्रॉब्लम है, हमारी साइड से प्रॉब्लम नहीं है, हमारी साइड से अलाउ है, वो दिख रहा है अलाउ हमें वहां पे, पर उस केस में, हाँ जी, उस केस में आपको मतलब अगर देखिए, अब यहाँ पे काफी अच्छे क्वेश्चन है। अब अगर आपका TCP बेस्ड कनेक्शन है, तो अप टू समहाउ हम क्या कर सकते हैं, कोरिलेट। बट अगर यूडीपी बेस्ड कनेक्शन है, क्योंकि यूडीपी क्या है, कनेक्शन लेस और स्टेटलेस, तो उस केस में आपका कनेक्शंस, यूडीपी का क्या है, कोई मतलब एक्नॉलेजमेंट बेस्ड प्रोसेस है ही नहीं, 3-वे हैंडशेक वगैरह नहीं होता, डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर होता है। मान लो मैंने क्या किया, यूडीपी बेस्ड एप्लीकेशंस, मान लो एक पोर्ट नंबर 53 का है, तो क्लाइंट ने एक पैकेट भेजा, ये मेरा सर्वर है, ये फायरवॉल है, तो फायरवॉल के सेशंस में ये पैकेट पास दिखा देगा, या फायरवॉल्स के लॉग में आपको पोर्ट 53 पास दिखा देगा। अगर रिटर्न ट्रैफिक नहीं आ रहा तो आप ट्रेस नहीं कर सकते। इस केस में आपको जो हेल्प करेगा, दैट इज पैकेट कैप्चर। उस केस में आप पैकेट कैप्चर देखोगे कि सीक्वेंस वाइज पैकेट आ रहे हैं या नहीं, बस लॉग से आपको पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि कोई भी कनेक्शंस के रिकॉर्ड्स को नहीं रखता वो। जैसे मैं कोई एक कैप्चर आपको दिखाऊं, जब मैं एक नया कनेक्शन करता हूँ, कि एक्चुअल में मान लीजिए कि मैंने एक वेबसाइट ओपन किया, एक यूडीपी बेस्ड कनेक्शन करता हूँ, तो यूडीपी बेस्ड कनेक्शन में आपको कैसे दिखता है पैकेट कैप्चर, उससे आप देख सकते हो, CMD lookup,
अब यहाँ पे एक मैं यूडीपी बेस्ड कैप्चर लेता हूँ। सो आयशा, अभी मेरे पास फायरवॉल नहीं है तो हम लोग इसी पे कर लेते हैं। पैकेट ऑलवेज भी सेम है, फायरवॉल से आपका जा रहा है या क्लाइंट मशीन से। लेट्स टू इनिशिएट वाईफाई। अब ये आपके पास कैप्चर का मेथड हो गया। मान लो कि आपको कोई कैप्चर लगाना है, छोटे छोटे कैप्चर्स का फिल्टर करना भी सीख सकते हो। अगर आपको डीएनएस का ट्रैफिक मान लो ओनली देखना है अभी, तो मुझे यहाँ डीएनएस लिखना पड़ेगा स्मॉल में, तो ओनली डीएनएस ट्रैफिक फिल्टर हो जाएगा। डीएनएस इज बेस्ड ऑन यूडीपी, सो फर्स्ट विल डू चेक डीएनएस बेस्ड ट्रैफिक। मान लो मैंने इसको बोला कि फेसबुक का आईपी बताओ मैनुअली, देखो यहाँ आंसर में आ गया आईपी, और यहाँ रिक्वेस्ट में भी हमें दिख जाएगा पैकेट फेसबुक का यहाँ गया होगा। यहाँ से स्पेसिफिकली मैंने फिल्टर नहीं लगाया है तो मुझे ये देखना पड़ेगा। ये है डीएनएस क्वेरी, मैंने किसको भेजा 888 को, मेरी मशीन का आईपी 1.4 है। सारे हेडर्स आप देख सकते हो वन बाय वन करके। तो अगर आप कैप्चर देखोगे, मान लो आपका डीएनएस का पैकेट नहीं जा रहा है तो लॉग में नहीं मिलेगा, फायरवॉल पे आएगा, तो फायरवॉल ने इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन के लिए अगर यूडीपी पोर्ट नंबर 53 अलाउ कर देगा, लेकिन जो रिस्पॉन्स पैकेट है वो नहीं मिलेगा। जैसे मेरे अगला सीक्वेंस क्या दिख रहा है, ये पैकेट गया, रिटर्न आया और उसका आंसर भी दिखा रहा है, तो ये पैकेट आपको नहीं मिलेगा, इसका मतलब ब्लॉक हो रहा है। तो यूडीपी में ऐसे आपको ट्रेस करना पड़ेगा। बट यूडीपी में एप्लीकेशंस कम ही है जितने आपके टीसीपी में है, तो टीसीपी बेस्ड मेजरली आपकी ट्रबल शूटिंग से कवर हो जाती है। यूडीपी में आपकी प्रॉब्लम्स आती है वॉइस बेस्ड ट्रैफिक हो गया, सिप हो गया, वीडियो बेस्ड ट्रैफिक हो गया, उन चीजों के लिए। तो अब देखो यहाँ पर जो हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया कि 4 लेयर्स दिखती हैं आपको टीसीपी आईपी मॉडल में, जो कि हम यूज करते हैं। एंड टीसीपी आईपी मॉडल्स हैविंग 4 लेयर्स, सो सारी डिवाइसेस उसी के अकॉर्डिंग काम करती हैं। सो लेट्स डू चेक। लेयर 2 हो गया। लेयर 2 के अंदर आपको क्या दिख रहा है, सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने फेसबुक को एक्सेस किया या मैंने डीएनएस क्वेरी जनरेट की और ये गूगल का डीएनएस सर्वर है, सो बेसिकली सोर्स मैक क्या लगेगा, मेरी मशीन। अभी के केस में आप सर वॉइस ये मॉडम है, ये डीएनएस सर्वर है, ये आपका क्लाइंट मशीन है, करेक्ट। तो मैंने ट्रैफिक इनिशिएट किया अगर इस डीएनएस सर्वर पे, ये गूगल का डीएनएस सर्वर है, तो सोर्स मैक मेरा हो गया। लेयर 2 हेडर समझा रहा हूं आपको, देखो कुछ भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर नहीं खास, सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक। तो आप यहाँ से और भी चीजें क्लियर कर सकते हो जिनकी चीजें क्लियर नहीं है। ये मेरा मॉडम है, तो जैसे घर में वाईफाई से कनेक्टेड हो सिंपली। तो अब लेयर 2 में जब मैं ट्रैफिक इनिशिएट करूंगा तो सोर्स मैक मेरा लग जाएगा ये भी। अब डेस्टिनेशन मैक क्या गूगल डीएनएस का लगेगा, 888 का क्या लगेगा डीएनएस, बताइए। मॉडम का। मॉडम का। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है ये लेयर 2 के बारे में। लेयर 2 में 2 केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट केस नंबर 1 और नेक्स्ट आपका हो जाएगा केस नंबर 2। 2 केस आपको लेयर 2 में मिलेंगे और वो यूनिवर्सल ट्रू है, हर जगह आपका सेम रहेगा। अब देखो आप रियल टाइम में या कहीं पे भी कम्युनिकेशन कराते हो, या तो क्या होता है कम्युनिकेशन सेम सबनेट में या डिफरेंट सबनेट में। अगर सेम सबनेट में कम्युनिकेशन होगा तो सोर्स मैक ओरिजिनली उसी डिवाइस का होगा जिससे आप ट्रैफिक इनिशिएट कर रहे हो, और डेस्टिनेशन मैक भी क्या होगा, ओरिजिनल डिवाइस का जिसके साथ आप कम्युनिकेशन करवा रहे हो। जैसे मान लो सेम सेगमेंट के अंदर एक मशीन है, दूसरी मशीन उसी विलैन में है, हमेशा डेस्टिनेशन गेटवे का नहीं लेगा, हमेशा किसका लेगा, आपका ओरिजिनल पीसी का या ओरिजिनल मशीन का। केस नंबर 2 होगा जब आप डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेशन कराओगे, तो डिफरेंट नेटवर्क कम्युनिकेशन थोड़ा सा अलग हो जाएगा। सोर्स ओरिजिनली जो मशीन इनिशिएट कर रही है ट्रैफिक, एंड डेस्टिनेशन ऑलवेज बी गेटवे। जो गेटवे आपने मशीन में बताया होगा, गेटवे मैक हमेशा लेगा। बस यही 2 केस होंगे, डिफरेंट नेटवर्क सेम नेटवर्क। तो लेयर 2 आप बस इसी तरीके से याद रख सकते हो, सेम नेटवर्क में है, आप रिजॉल्व करेगा और उसके बाद उस डिवाइस को रीच करने की कोशिश करेगा, और अगर आप रिजॉल्व नहीं होती पैकेट वहीं ड्रॉप। डिफरेंट नेटवर्क में गेटवे का आप रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा, अगर गेटवे बंद हो गया, मेरा मॉडम बंद हो गया या उस तक मैं अनरीचेबल हूँ,
तब भी पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। तो लेयर टू इन्फॉर्मेशन गेट चेंज होप बाय होप अगर आप डिफरेंट नेटवर्क में जाते हो। तो ये दो केसेस होते हैं, जैसे मैंने अभी डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेशन करा है, मेरा आईपी सेगमेंट ये है, डेस्टिनेशन इज समथिंग डिफरेंट आईपी सेगमेंट। सो इस केस में आपका ये वाला आ जाए केस नंबर 2, गेटवे मैक। और अगली फील्ड क्या दिख रही है आपको? टाइप, ईथर टाइप। अब लेयर 2 के ऊपर क्या ट्रैफिक चल रहा है? लेयर 2 के ऊपर आपका लेयर आईपी वर्जन 6 भी चल सकता है, एमपीएलएस का ट्रैफिक भी चल सकता है, आईपी हेडर भी लग सकता है। तो जो ईथर टाइप फील्ड होती है, यहाँ पे टाइप लिख के आ रहा है देखिए, तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है 0x0800, सो इट मीन्स इट इज आईपी वर्जन 4। वर्जन 4। आर्प का ट्रैफिक रहेगा, लेयर 2 के ऊपर दूसरा दिखेगा 0x0806 समथिंग करके। तो ईथर टाइप भी एक इंपॉर्टेंट फील्ड है जो डिस्टिंग्विश करती है, आपको आइडेंटिफाई करवाती है कि लेयर 2 के ऊपर कौन सा ट्रैफिक चल रहा है। ईथर टाइप भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ से देख सकते हो, ईथर टाइप वैल्यूज या ईथर टाइप लिस्ट डाल दो। तो देखो हर एक ईथर टाइप आपको अलग अलग मिलेगा। ये हो गया, ये एक छोटी सी फील्ड है लेयर 2 के अंदर। तो नॉर्मली लेयर 2 हेडर में आपको सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, ईथर टाइप, बस 2 ही चीज दिखेंगी, 3 चीज दिखेंगी। अगर आप वीलैन टैगिंग ऐड करते हो, .1 क्यू इनकैप्सुलेशन है कुछ, वो सब दिखेगा। तो फायरवॉल इतना ही चेक करता है, या कोई भी डिवाइस, राउटर भी सेम इसी तरीके से प्रोसेस करेगा अप टू लेयर 2। ये सारे ईथर टाइप आपको दिख रहे हैं वैल्यूज। एक सेकेंड, यहाँ पे आप देखें विकिपीडिया, यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा है। अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे आईपी वर्जन 4 के लिए ईथर टाइप वैल्यू फिक्स है, तो अगर लेयर 2 के ऊपर आईपी वर्जन 4 का हेडर लगा होगा तो यही वैल्यू आपको ईथर टाइप में मिलेगी। इसका मतलब ये बताता है कि ऊपर कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है लेयर 2 के ऊपर, क्योंकि लेयर 2 के ऊपर कोई सा भी प्रोटोकॉल आपका चल सकता है। तो देखो यहाँ पे पूरा हेडर बनाया भी गया है, 2 ऑक्टेट फील्ड है ये, इथरनेट या ईथर टाइप जिसको हम बोलते हैं। ये नॉर्मल आपका है मैक एड्रेस, इसमें एक प्रीएम्बल फील्ड भी होती है, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, ईथर टाइप, सीआरसी पेलोड। तो नॉर्मली आपको जो याद रखना है इनिशियल लेवल पे, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, ईथर टाइप वैल्यू रॉन्ग है, फायरवॉल ने देखा, तो फायरवॉल उसको एनॉमली ड्रॉप में डाल देगा, कहेगा कि ये इट्स रॉन्ग वैल्यू। 0x0806 आर्प के लिए है, अगर आर्प का ट्रैफिक होगा हमेशा ये फील्ड, ये वैल्यू दिखेगी। आईपी वर्जन 6 का ट्रैफिक ले जाओगे तो 0x ये आ रहा है 86 समथिंग, 86DD। एमपीएलएस होगा, यूनिकास्ट ट्रैफिक है, तो उसका ईथर टाइप वैल्यू अलग दिखाएगा 8847। सो हमारा जो पैकेट था इसमें क्या दिख रहा है, इट्स हैविंग सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, ईथर टाइप। उसके बाद आप लेयर 3 हेडर ओपन करो। अब लेयर 3 हेडर, एज आई टोल्ड यू, इट्स अबाउट आईपी एड्रेस। सो यहाँ पे सोर्स आईपी दिखेगा, डेस्टिनेशन आईपी, यहाँ पे आपको एक फील्ड दिखती है डीएससीपी। तो जब आप क्वालिटी ऑफ सर्विस या डीएस ये पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पे डीएससीपी। तो ट्रैफिक को प्रायोरिटाइज करने के लिए हम डीएससीपी यूज करते हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती है, जिससे ट्रैफिक क्यू में नहीं जाता, उसको प्रायोरिटाइज कर देता है। जैसे वॉइस का ट्रैफिक हो गया, वीडियो ट्रैफिक, तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज लग जाती हैं पैकेट के साथ। ये वैल्यूज जब आएंगी आईपी हेडर में मैच करता है, चाहिए ट्रैफिक प्रायोरिटाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग देखते हो कि नॉर्मल रोड पर ट्रैफिक होता है, ये आपका रोड है, इस पर क्या ट्रैफिक है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे डीएससीपी के साथ भी है। तो अब सभी लोग जा रहे हैं, जनरल ट्रैफिक चल रहा है, अगर रेड लाइट आ गई तो रुकना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए कि एक मिनिस्टर है या कोई मंत्री वगैरह आ रहा है, तो उसके लिए क्या रोड क्लियर करवाई जाती है कि उसका जल्दी से निकल जाए। तो द सेम थिंग, अगर आप डीएससीपी में प्रायोरिटाइज या प्रायोरिटी की बिट लगा के आ रहे हो तो वो क्यू में नहीं रखेगा, ट्रैफिक को तुरंत निकाल देगा। प्रायोरिटाइज करना है ऐसे ट्रैफिक को, और उसके लिए उतनी बैंडविड्थ रिजर्व करना, तो उस चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए यहाँ पे डीएससीपी फील्ड दिखती है। अभी अच्छा, इसमें ये जो डीएससीपी है, हाँ जी, डीएससीपी, ये हमने जो पैकेट कैप्चर किया है ये लोकल सिस्टम पे किया है, हाँ हाँ और हमने ये चीज वायर शार्क भी लोकल सिस्टम पे चलाया है। तो हाँ जी, ये डीएससीपी ये लोकल सिस्टम कैसे बता रही है? तो हम प्रायोरिटाइज तो फायरवॉल पे करेंगे ना। हाँ यहाँ पे नहीं दिखाएगा, मतलब मैं समझा रहा हूँ अभी, जब हम फायरवॉल पे अगर कभी लगाएंगे तो वहां पे दिखेगी वैल्यू। तो ये क्या पहले मतलब सिस्टम से ही चीजें गेट कर लेता है?
मतलब जैसे QS हो गया, नहीं नहीं नहीं, तो ये सिस्टम्स तो नहीं होगा। जब आप जिस डिवाइस पे लगाओगे वहीं पे वो ऐड ऑन होगा, उसी 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 सोर्स उसी डेस्टिनेशन के लिए वो क्यूएस को अप्लाई करेगा। आईपी बेस्ड लगता है ना, सेगमेंट बेस्ड, सबनेट बेस्ड। दैट अच्छा, मीन्स कि हमने तो फायरवॉल पे लगाया तो हाँ, वहीं से ट्रैफिक मैनिपुलेट होगा। मतलब ऐसे हुआ जैसे सिस्टम है, सिस्टम इस सिस्टम के लिए, सोर्स के लिए मैंने फायरवॉल पे सेटिंग कर दी कि तू इस एप्लीकेशन के लिए जाएगा तो इसको प्रायोरिटी देना। तो यस। सिस्टम यहाँ से जनरेट किया उस एप्लीकेशन के लिए, तो जब मेरा जो भी कनेक्शन या सेशन बनेगा उसके साथ में, तो यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी उसकी, ऐसा है ना? हाँ, ये जरूरी तो वो नहीं है कि मुझे फायरवॉल के पीछे जाके पैकेट कैप्चर करना पड़ेगा, मतलब इधर से नहीं नहीं, वो आगे। वो वो आईपी मैच होना चाहिए, और जिसके लिए आप लगा रहे हो, और एप्लीकेशन मैच होना चाहिए जिस एप्लीकेशन के लिए आप प्रायोरिटाइज कर रहे हो। जब वो फायरवॉल पे आएगा तभी लगेगा। ठीक है। अगली फील्ड आपके पास आती है टीटीएल वैल्यू। अब टीटीएल वैल्यू बताइए, ये तो सबको पता होगा, इट्स वेरी इजी फील्ड लेयर 3 के अंदर। फायरवॉल भी आपका टीटीएल वैल्यू चेक करता है। टीटीएल वैल्यू का मतलब होता है टाइम टू लीव। इसके बारे में भी आप याद रख सकते हो। टीटीएल वैल्यू इज टाइम टू लीव, एंड टीटीएल वैल्यू विल डिफाइन द लाइफ ऑफ पैकेट। एक पैकेट की कितनी लाइफ है वो आपको डिफाइन करता है। सो इसका मतलब क्या हो गया कि फायरवॉल या कोई भी जब डिवाइस आता है तो उसकी वैल्यू को देखता है। अगर आप कभी विंडोज बेस्ड मशीन से ट्रैफिक इनिशिएट करोगे, एंड टीटीएल वैल्यू इज फिक्स्ड ऑन, टीटीएल वैल्यू जो होती है वो होस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। फायरवॉल वगैरह उसमें कुछ नहीं करता, होस्ट के ऊपर। अगर विंडोज मशीन है तो टीटीएल वैल्यू आपको हमेशा 128 दिखेगा। जैसे मैं इनिशिएट कर रहा हूँ ना, टाइम टू लीव 128 दिखा रहा है मेरे पैकेट में। अगर आप किसी लिनक्स बेस्ड मशीन में चलाओगे तो आपको क्या दिखेगा, 64। और अगर आप iOS सिस्को डिवाइसेस में चलाते हो या नॉर्मली किसी और डिवाइस में, तो वहां पर आपको दिखेगा 255। तो ये होस्ट पे डिपेंडेंट दैट मीन्स वैल्यूज होती हैं। ओएस बेस डिफाइन करेगा सर ना ये। यस, ये ओएस बेस्ड वैल्यूज होती हैं। जैसे मैं एक पिंग कराता हूँ, देखना आप ध्यान से। पिंग में भी आपको अलग अलग टीटीएल वैल्यू दिखती है। जैसे मान लो मैंने बोला कि एक काम करो, google.com से पिंग करो, जस्ट डू ट्राई टू पिंग google.com। आ रहा है पिंग, डॉट क्लिकिंग डॉट डेमो। लेट्स सी। यूजर 6 उठा रहा है। ठीक है। सो अब मैंने ये पिंग कराया फॉर एग्जाम्पल। तो अब देखो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यहाँ पर भी आपको दिखाता है दो चीजें। एक, ये इस पूरे पैकेट्स को आप बताओ क्या दिखा रहा है। यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि यू आर ट्राइंग टू पिंग 888, एंड यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट का पैकेट नहीं दिखाता। कौन सा पैकेट नहीं दिखा रहा, रिक्वेस्ट का। जो आपको CLI स्क्रीन पे दिखता है वो रिप्लाई दिखता है। एक्चुअल में जो रिक्वेस्ट मैंने भेजा होगा वो भेजा होगा 192.168.1.4 इन सोर्स, एंड डेस्टिनेशन इज 8888। ये कुछ पैकेट इनिशिएट किया होगा मैंने, तो उसका रिप्लाई दिखा रहा है। अगर रिप्लाई आता है तो ये दिखाता है। अब जब भी रिप्लाई पैकेट आता है उसके साथ ये क्या होता है, पेलोड। नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी कम्युनिकेशन कराते हो तो पेलोड 0 के साथ कम्युनिकेशन नहीं होता है। मतलब हो सकता है, बट आइडियली क्या होता है, किसी भी पैकेट के साथ कुछ ना कुछ डेटा पेलोड होना चाहिए, तभी हम उसकी लेटेंसी, स्पीड, ये सारी चीजें वेरीफाई करते हैं। तो जब आप पिंग का ट्रैफिक इनिशिएट करते हो तो बाय डिफॉल्ट उसके साथ जो डेटा लग के जाता है वो 32 बाइट्स का। तो दिखा रहा है इस डेस्टिनेशन से 32 बाइट्स का डेटा जा रहा है। मतलब रिस्पांस में आप इनिशिएट भी कर रहे हो, रिस्पांस भी उतने के साथ आ रहा है, और ये डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए इतने मिली सेकेंड्स लग रहे हैं। एक पैकेट में इतना लगा, फिर कम हुआ, फिर कम, फिर कम। उसके बाद यहाँ पे आता है टीटीएल वैल्यू 60। अब मैंने आपको बताया था टीटीएल वैल्यू तो 128/64 ही होती है, यहाँ पे 60 कैसे आ रहा है। अब एक्चुअल में क्या हुआ होगा कि मैंने यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट किया, ये सर्वर है मेरा 888, और ये सर्वर क्या होगा, लाइनेक्स बेस्ड। तो इसके और मेरे बीच में कितने राउटर्स होंगे, 4, कम से कम 4 होंगे। तो जब ये रिप्लाई भेजा होगा इसने तो 64 से भेजा होगा, जब यहाँ आएगा 63 हो जाएगा, -1 करता जाता, जितने राउटर क्रॉस करेगा उतने -1, 62, 61, यहाँ 60। और क्लाइंट मशीन पे जब ये आपको दिखाएगा तो क्या दिखाएगा, टीटीएल वैल्यू 60। अगर आपको यहाँ पे 60 या 58 वैल्यू दिख रही है
इसका मतलब क्या है कि ये लिनक्स मशीन है और आपके और मेरे बीच में अगर यहाँ 60 दिख रहा है तो नियरेस्ट क्या है, आपको बस माइनस करना है तो आपको नंबर ऑफ काउंट पता चल जाएगी। तो 4 होप्स है इसके बीच सर में। सपोज हमारे पास जैसे आपने लिनक्स मशीन से उसका रिप्लाई 64 आपने बाय डिफॉल्ट बताया, जितने भी बीच में 4 राउटर थे 4 उसने माइनस कर दिए। सपोज मेरे पास 64 राउटर्स है और हमारा जो क्लाइंट मशीन है वो उसके पीछे है, तो इसकी वैल्यू कैसे बढ़ेगी बाद में? बढ़ेगी नहीं, ड्रॉप हो जाएगा। अगर टीटीएल किसी भी होप पर टीटीएल वैल्यू 0 हो जाती है तो वहीं पे पैकेट क्या हो जाएगा, ड्रॉप। इसका मतलब क्या, पैकेट की लाइफ खत्म होगी। अगर जैसे मैंने ये किया, ये ऑफ बाई ऑफ दिखा रहा है, अभी ये दूसरे उससे जा रहा है, पिंग करा रहा तो मैं दूसरे से जा रहा था, ये 88 अब दिखा रहा है 7। तो डिपेंड करता है कहाँ से जा रहा है। अब मैं 111 को करूँ तो यही दिखाता है। अब जब आप पिंग कराते हो तो इतनी वैल्यूज माइनस कर देता है, तो इसलिए आपको अलग अलग टीटीएल वैल्यूज दिखती है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन होता है कि अभी टीटीएल वैल्यू अलग अलग क्यों दिख रहे हैं, यहाँ पे 5 दिखा रहा है, किसी में आपको 58 दिखाता है, किसी में 68 दिखाता है, किसी में 120 दिखाता है। तो टीटीएल वैल्यू फील्ड बताती है कि लाइफ क्या है एग्जैक्टली पैकेज की। उसके बाद यहाँ पे आता है प्रोटोकॉल नंबर। अब देखो आईपी ही आपका क्या है, आईपी इज राउटेड प्रोटोकॉल। अब आपका ये जो है ये एक सिंपली क्या है, एक आईपी इज राउटेड प्रोटोकॉल, ये आपका राउटेड प्रोटोकॉल है। अब यहाँ पर दिखा रहा है आपके पास एक और फील्ड दिखा रहा है यूडीपी। इसका मतलब क्या है कि आईपी के ऊपर ही सभी एप्लीकेशन चलते हैं, आईपी के ऊपर ही टीसीपी चलेगा। ये चीज आप समझ सकते हो ध्यान से, आईपी के ऊपर यूडीपी चलेगा, आईपी के ऊपर ही आईजीआरपी चलता है। राउटिंग प्रोटोकॉल्स भी जितने हैं वो भी इसी के ऊपर चलेंगे। आईपी के ऊपर ही आपका क्या चलेगा, ओएसपीएफ चलेगा। आईपी के ऊपर ही आपका बीजीपी चलेगा। जितने प्रोटोकॉल्स हैं नॉर्मली वो आईपी के साथ ही चलेंगे। अगर आप पिंग भी कराते हो तो आपका क्या चलता है, लेयर 4 तक कम्युनिकेशन होता है, आईसीएमपी। तो आईपी के ऊपर कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है, कौन सा यूनिक प्रोटोकॉल चल रहा है, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए एक फील्ड बनाएगी जिसका नाम क्या है, प्रोटोकॉल फील्ड। अब पूरे नेटवर्किंग के अंदर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्रोटोकॉल नंबर क्या है। अब जैसे बहुत सारे लोगों से पूछो यूडीपी पोर्ट नंबर क्या है, तो आप लोग बताओ यूडीपी पोर्ट नंबर क्या है, 17 लोग बोल देंगे, विच इज टोटली रॉन्ग। करेक्ट। अब आपसे कोई बोलता है, आपने बोला टीसीपी के पोर्ट नंबर क्या है, पूछने वाला भी गलत है, बताने वाला भी रॉन्ग है। टीसीपी का पोर्ट नंबर 6 है, आपने बोल दिया यूडीपी का 7। 17। ये सब गलत है, पोर्ट नंबर नहीं है, इट्स प्रोटोकॉल नंबर। तो आप कई जगहों पे, स्पेशली आप कहीं पे इंटरव्यू में जाते हो या कोई बंदा आपसे आपका टेस्ट ले रहा है तो ये सब चीजें पूछता है। स्पेशली आप एचसीएल में जाते हो, ब्रिटिश टेलीकॉम में, जहाँ पे थोड़ा पैकेट लेवल पे ज्यादा लोग क्वेश्चंस करते हैं, तो देयर यू गेट ऑल दीज क्वेश्चंस। इसमें आईपीसेक का भी पूछते हैं तो उसका भी रॉन्ग ही है ना, यस, आईपीसेक का कोई पोर्ट नंबर नहीं जो है। एक प्रोटोकॉल है वो भी एक ना। यस, आईपीसेक यूजेस एएच और ईएसपी। आईपीसेक के पेलोड्स को कैरी करने के लिए हमारे पास 2 प्रोटोकॉल है, एक एएच है एक ईएसपी है। एएच का प्रोटोकॉल नंबर है 51, 5। ईएसपी का क्या 50। तो ये प्रोटोकॉल नंबर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब आप वीपीएन का ट्रैफिक खोलोगे तो यहाँ पर लेयर 3 में यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ईएसपी, प्रोटोकॉल इज इक्वल टू ईएसपी, और ये फील्ड क्या हो जाएगी 50। एएच नहीं चलता है, एएच विल नॉट डू प्रोवाइड इंक्रिप्शन, एएच ओनली डू प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन एंड हैशिंग। तो आज की डेट में एब्सोल्यूट है, नो वन यूजेस दिस। इसका मतलब अगर आप एएच प्रोटोकॉल चूज करोगे वीपीएन बनाते टाइम तो डेटा कभी भी इंक्रिप्ट नहीं होगा, और ईएसपी विल डू इंक्रिप्ट योर डेटा, और इसका प्रोटोकॉल नंबर क्या 50। तो पूरे नेटवर्किंग के अंदर जो प्रोटोकॉल नंबर का कॉन्सेप्ट है वो आपको लेयर 3 से ही मिलता है। तो आपसे कोई बोलता है कि प्रोटोकॉल नंबर, जैसे किसी ने बोला टीसीपी, टीसीपी कोई पोर्ट नहीं। अब पोर्ट नंबर जिन एप्लीकेशंस का है वो हमारे पास बस 2 ही है पूरे नेटवर्किंग में। कभी भी पोर्ट नंबर की बात होगी तो पोर्ट नंबर कैन बी ओनली बेस्ड ऑन 2 प्रोटोकॉल, टीसीपी और यूडीपी। अब जैसे मैं बोलूं आपसे कि यार टेलनेट का पोर्ट नंबर क्या है, तो सब लोग बोलोगे 23। एक्चुअल में टेलनेट का पोर्ट नंबर नहीं है ये, टेलनेट इज डिपेंड ऑन टीसीपी 23।
तो ये प्रोटोकॉल जो दिखा रहा है यहाँ पे यूडीपी प्रोटोकॉल 17, तो हम्म। प्रोटोकॉल ठीक है, प्रोटोकॉल यूडीपी है, तो 17 क्या है फिर? इसका प्रोटोकॉल यूडीपी, और इस प्रोटोकॉल को आइडेंटिफाई करने के लिए, यूनिकली रिकॉग्नाइज करने के लिए आईपी हेडर के अंदर इसकी वैल्यू क्या है? 17। मतलब अगर यूडीपी का कभी भी कोई भी ट्रैफिक लग के जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी? 17। इसका मतलब ये भी है कि अब लेयर 3 के ऊपर जो आपको हेडर दिखेगा वो किसका दिखेगा? यूडीपी का हेडर। करेक्ट। तो आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे डेस्टिनेशन में कोई भी रैंडम, जैसे मैं आरपीसी होती है, या आपका एक्टिव डायरेक्टरी के बहुत सारे पोर्ट होते हैं जो यूडीपी पे काम करते हैं, यहाँ पे डेस्टिनेशन में पोर्ट हुआ सपोज 49,000 समथिंग लाइक दैट, वो होगा यूडीपी। तो यूडीपी यहाँ बोर्ड पे जो यहाँ प्रोटोकॉल हमेशा आपको यूडीपी होगा 17 वो मिलेगा। 17 दिखेगा, हाँ आपका जी, मतलब है? यस करेक्ट। ओके। कोई भी यूडीपी बेस्ड पोर्ट नंबर आप यूज करोगे, आईपी हेडर के अंदर हमेशा क्या मिलेगा? प्रोटोकॉल यूडीपी, और उसका नंबर क्या होगा? 17। अब पर आप यहाँ पे यहाँ पे 69 नीचे यूज करोगे। डेटाग्राम प्रोटोकॉल में आपको डिफरेंट मिल जाएगा, मतलब यस डेस्टिनेशन। करेक्ट। यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन पोर्ट, मतलब इसका मतलब ये है कि अगला हेडर जो लगेगा यूडीपी का लगेगा। अब ये प्रोटोकॉल नंबर के साथ पोर्ट नंबर क्या रहेगा वो डिपेंड करता है क्या? एप्लीकेशन पे। हाँ बिल्कुल। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? तो ये चीजें काफी इंटरेस्टिंग है, यू कैन कोरिलेट। जी सर। अब ये आपका आ गया। अब यहाँ पे देखो, इसको ओपन करो। अब ये यूडीपी हेडर तो बहुत छोटा होता है, इसमें कुछ भी नहीं है। सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, इसके अंदर 3 वे हैंडशेक वगैरह, सिन वगैरह कुछ नहीं दिखेगा। टाइम स्टैम्प वैल्यू दिखती है, चेकसम स्टेटस, और इसकी लेंथ। तो 2-2 बाइट की फील्ड होती है, 8 बाइट का हेडर होता है ये सिंपली। तो सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट ये दिख गया। तो अब मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ। लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4 एंड लेयर 7। इसी तरीके से कम्युनिकेशन होता है। और लेयर 7 को क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन लेयर, L7। तो लेयर 2 को कैसे पता चलता है कि लेयर 3 पर क्या चल रहा है? अभी मैंने बताया उसके लिए क्या यूज करता है? ईथर टाइप। अब लेयर 2 के ऊपर अगर आईपी होगा तो ईथर टाइप वैल्यू क्या हो जाएगी? 0x0800। अब लेयर 3 के ऊपर अब टीसीपी का ट्रैफिक चलेगा, यूडीपी चलेगा, ईएसपी चलेगा, एएच चलेगा, या आपका जीआरई टनल बनेगा, जीआरपी चलेगा, ओएसपीएफ चलेगा। वो कौन डिफाइन करेगा? प्रोटोकॉल नंबर। अगर प्रोटोकॉल नंबर 17 है तो अगला हेडर मेरा क्या हो जाएगा? यूडीपी। और ये बात आईपी हेडर को भी क्या है? पता है। और अगर यूडीपी हेडर के अंदर मान लीजिए कि डेस्टिनेशन पोर्ट 53 है, इसका मतलब एप्लीकेशन लेयर पे हमें क्या मिलेगा? टीएनएस। तो डेस्टिनेशन पोर्ट हमें कहाँ कनेक्ट करता है? लेयर 7 पे। अब आपने बोला कि मुझे एसएसएच करना है, तो एप्लीकेशन लेयर बोलेगा कि एक काम करो, पहले जाओ लेयर 4 पर और 22 पोर्ट नंबर लेकर आओ टीसीपी। तब मैं आपको एप्लीकेशन क्या दे दूंगा? एसएसएच। इसका मतलब सारे एप्लीकेशन कहाँ चल रहे हैं? लेयर 7 पे। और अगर एप्लीकेशंस तक आपको पहुंचना है तो एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग पोर्ट नंबर लेकर आना पड़ेगा, और हर एक पोर्ट नंबर एक अलग सर्विस को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, आपने बोला कि मुझे यार पोर्ट 80 पर वेब ब्राउजिंग करनी है, तो लेयर 7 आपको बोलेगा कि एक काम करो, पहले जाओ 3 वे हैंडशेक करो। जब आपका 3 वे हैंडशेक पोर्ट 80 पर सक्सेस हो जाएगा, तब आप यहाँ आ जाओगे लेयर 7 पे, और मैं HTTP पैकेट्स के बेसिस पे डेटा ट्रांसफर स्टार्ट कर दूंगा। तो इसका मतलब सारे एप्लीकेशन यहाँ पर है, और रियल टाइम में जितने एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस आपके या तो टीसीपी बेस्ड हैं या यूडीपी बेस्ड। और इन एप्लीकेशंस को हम कब डिसाइड करते हैं कि मेरा एप्लीकेशन टीसीपी होगा, यूडीपी? एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट। अगर कोई एप्लीकेशन जिसको रिलायबिलिटी चाहिए तो उसका पोर्ट नंबर हम टीसीपी लेते हैं। अगर हम ऐसा कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं जिसकी रिलायबिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, सो वी ऑलवेज डू यूज यूडीपी। और रियल टाइम ट्रैफिक में एक और प्रोटोकॉल होता है एससीटीपी, बट इसको हम कभी यूज नहीं कर सकते। इट्स स्लोअर देन टीसीपी, सो पीपल डू अवॉइड दिस। तो यही 2 प्रोटोकॉल दिखेंगे बस, टीसीपी यूडीपी। और इनकी रिलायबिलिटी, टीसीपी और यूडीपी का कोई भी ट्रैफिक होगा वो हमेशा कहां तक जाएगा? लेयर 7 तक। टीसीपी यूडीपी बेस्ड एप्लीकेशन, आप ऐसे एक लाइन याद रख सकते हो, टीसीपी यूडीपी बेस्ड एप्लीकेशन ऑलवेज डू वर्क ऑन लेयर 7।
कोई भी किसी ने बोला अच्छा मेरा टीसीपी एप्लीकेशन, इसका मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए कि फायरवॉल पे जो ट्रबल शूटिंग चलेगी वो कहाँ तक चलेगी, L7 तक। किसी ने बोला मेरा एप्लीकेशन यूडीपी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पोर्ट आईपी पे ही ब्लॉक हो सकता है, लेयर 7 तक उसका इंस्पेक्शन होगा और वहां पे भी आपका क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल डू मिस, उनको लगता है कि टीसीपी बेस से पोर्ट नंबर अलाउ कर दिया तो हो जाएगा, बट कई केसेस में आपको नहीं होगा, बिकॉज यू आर नॉट अवेयर अबाउट एप्लीकेशन बिहेवियर। तो ये पूरी स्टोरी है जो कि आपको समझ में आनी चाहिए टीसीपी यूडीपी बेस्ड। इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जो अलग है। अब इसके साथ दो बातें और आप याद रख सकते हो। टीसीपी बेस्ड एप्लीकेशन ऑलवेज डू रिक्वायर्ड 3-वे हैंडशेक। जब भी आप टीसीपी बेस्ड एप्लीकेशन चलाओगे उसमें क्या चाहिए आपको, कनेक्शन बनाना है। तो मतलब एक ट्रबल शूटिंग तो ये हो गई कि कनेक्शन नहीं बन रहा है। अगर यही ट्रबल शूटिंग आप कर लेते हो तो भी आप बहुत जल्दी अच्छी ट्रबल शूटिंग करके अच्छा सोल्यूशन दे सकते हो। कनेक्शन नहीं बनना, क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं फायरवॉल के पर्सपेक्टिव में। पॉलिसी हिट ना आ रहा हो, पॉलिसी ही गलत बनी हो, वो पोर्ट नंबर आपका ना खुला हो, अगर बाहर से आ रहा है डेस्टिनेशन नेट आपका सही ना हो, या फायरवॉल किसी दूसरे रूल से इसको ड्रॉप कर रहा हो, ये सारे फायरवॉल्स पे ब्लॉकिंग के रूल्स हो सकते हैं। एप्लीकेशन नहीं चल रहा है, फायरवॉल पे अगर आपको सिम का पैकेट पास हो रहा है तो 90% केसेस में है कि नीचे जाकर कहीं ड्रॉप हो रहा है। फायरवॉल में क्या हो सकता है, किसी कोई वेबसाइट पूरी प्रॉपर खुल रही है लेकिन उसका कुछ एक पेज नहीं खुल रहा है, उसका कुछ एक एप्लीकेशन या फॉर्म डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो मतलब इशू कहाँ है, लेयर 7 के अंदर कुछ ऐसा कंटेंट यूज कर रहा है जिसको फायरवॉल क्या कर रहा है, ब्लॉक मार दे रहा है। तो अब आप इस तरीके से सोचने लग जाओगे। नॉर्मली क्या होता है, प्रॉब्लम आती है, पीपल डू नॉट थिंक इवन कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कहाँ सोचना है, और आप जब सोच ही नहीं पाओगे तो आप खुद से कभी ट्रबल शूटिंग नहीं कर पाओगे। तो मेन जो हमारा मोटो होना चाहिए, कोई भी फायरवॉल करते हो, यू शुड थिंक कि क्या चीजें चल रही हैं और कैसे ट्रबल शूट कर सकते हैं, एक्चुअल में कैसे चल रहा है। अदरवाइज क्या होता है कि ट्रेनिंग भी हम करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट लास्ट में क्या होता है, रिजल्ट वही आता है कि वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स, वी आर नॉट एबल टू ट्रबल शूट। तो जस्ट डू मेक श्योर कि इस तरीके से आप इस लेवल पे एक बारी अंडरस्टैंडिंग ले लो, सो इट्स बिकम वेरी इजी। आप खुद ही सोचोगे कि अच्छा ये पॉलिसी नहीं चल रही। अब मान लो आपको पॉलो अल्टो पे ही अगर मैं बोलूं कि एक पर्टिकुलर ट्रैफिक, किसी यूजर ने बोला कि चेक करके बताओ मेरा ट्रैफिक ओपन है या नहीं, इस सोर्स से इस आईपी के लिए, सोर्स एक्स है, डेस्टिनेशन आईपी वाई है, पोर्ट नंबर मेरा 8080 है, कौन से पॉलिसी से ट्रैफिक जा रहा है ये आपको चेक करके बताना है। हाउ यू डू फाइंड आउट, लॉग में देखेंगे सर, सोर्स डेस्टिनेशन के लिए। लॉग में देखेंगे, और मान लो लॉग हिट आ ही नहीं रहा है, नई पॉलिसी बनी है बिल्कुल और इस पे हिट नहीं आ रहा है, अब आपको क्रॉस चेक करना है, 1000 पॉलिसी है, पॉलिसी लुकअप पे एक फीचर होता है पॉलिसीज में। पॉलिसी लुकअप एक फीचर होता है। और अब आपको कुछ नहीं करना है, इस चीज को चेक करने के लिए आपने एक बहुत नॉर्मल फीचर पढ़ा होगा या नहीं, आई एम नॉट श्योर। टेस्ट पॉलिसी लुकअप कमांड चलती है, तो आपको ये आंसर देना था। टेस्ट पॉलिसी लुकअप में ये सोर्स आईपी डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर डालोगे तुरंत दिखा देगा किस किस पॉलिसी से जा रहा है। अगर ये ट्रैफिक दो पॉलिसी से मैच हो रहा है तो ऑर्डर में दिखाएगा पॉलिसी नंबर 1 2 3। इट्स वेरी सिमिलर टू पैकेट प्रेशर कमांड इन एएसए। और फोर्टीगेट के अंदर यही कमांड कहाँ मिलेगी आपको, फ्लो ट्रेस, डिबग फ्लो ट्रेस के अंदर। अभी लेयर 7 तक समझने में किसी को प्रॉब्लम है? अब देखो लेयर 7 नो हेडर ओपन सर। करो, ये तो पोर्ट नंबर दिख गया। इसका मतलब क्या, फायरवॉल ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ कर सकता है, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा। अब आपको पहले से ही पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, आप यहाँ ट्रबल शूटिंग कर सकते हो। इवन आप थोड़ी बहुत ट्रबल शूटिंग 1-2 महीने करोगे, आपको देखते ही पता चल जाएगा अच्छा ये प्रॉब्लम है, इस तरीके से होगा, क्या हो सकता है। लेयर 7 पे आपको दिखा रहा है हेडर क्या लग गया, जब यहाँ पर पोर्ट नंबर 53 है तो एप्लीकेशन यहाँ पे मिल जाएगा डीएनएस। अगर यहाँ पोर्ट नंबर 22 होगा तो एप्लीकेशन यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ऊपर लेयर पे एसएसएच का हेडर। अगर यहाँ 23 होगा तो लेयर 7 पे आपको क्या दिखेगा, टेलनेट हेडर। अगर यहाँ पोर्ट 80 होगा एप्लीकेशन लेयर पे आपको HTTP हेडर दिखेगा। तो ये सब आप धीरे धीरे अब याद रख सकते हो, इट्स वेरी इजी। इसको ड्रैग करो नीचे और यहाँ पर देखो क्वेरीज, अब बहुत सारी फील्ड्स है और फ्लैग्स हैं, ये भी आप धीरे धीरे समझ सकते हो। नॉर्मली आप देखो जब भी आप एक क्लाइंट मशीन से क्वेरी भेजते हो, इट ऑलवेज भी रिकर्सिव डिजायर।
रिकर्सन का मतलब होता है कि जब तक आंसर ना मिले भेजते रहना। जैसे मान लो क्लाइंट ने भेजा, इस डीएनएस सर्वर के पास आंसर नहीं, तो ये इसको रिप्लाई नहीं करेगा, ये डीएनएस सर्वर दूसरे डीएनएस सर्वर को दे देगा। तो जब हम क्लाइंट मशीन से रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हम लेवल बोलते हैं क्या, रिकर्सन डिजायर, डू क्वेरी रिकर्सिवली। अब यहाँ पे क्वेरी मैंने क्या किया है, facebook.com, मैंने बोला कि भाई facebook.com का आईपी बताओ, व्हाट इज द आईपी एड्रेस ऑफ facebook.com, एंड टाइप इज ए, इसका मतलब आईपी वर्जन 4 के लिए। और अगर आपको यहाँ पे रिकॉर्ड में दिखता है क्वेड है, मतलब 4 बार ए, तो ये जो रिस्पॉन्स है वो किसके लिए आएगा, आईपी वर्जन 6 के लिए। तो ये एक यूडीपी बेस्ड ट्रैफिक हो गया। इसी तरीके से आप सारे ट्रैफिक समझ सकते हो खुद ही ओपन करके। और फिर फायरवॉल पे कैप्चर लगाओगे तो इसी तरीके से ट्रबल शूटिंग में कैप्चर दिखेगा, तो वो सब भी आपके लिए इट्स बिकम वेरी इजी। अब ये देखो आईपी वर्जन 6 का हेडर है, इसमें क्या दिखेगा, क्वेड दिखेगा, ये आ रहा है 4 टाइम। कह रहा है कि self.event.data.microsoft, तो मैं थोड़ा कंक्लूड करता हूँ। आपके पास क्या है, एप्लीकेशंस और फायरवॉल्स के पर्सपेक्टिव में फिर से सोचते हैं 2 मिनट। फायरवॉल आप कहीं पे भी लगाओगे, फायरवॉल विल टू इंस्पेक्ट ट्रैफिक अप टू लेयर 2 टू लेयर 7, यहाँ से यहाँ तक चेक करेगा। इनके बीच में 2 लेयरें और आती हैं। अब आपको ओएसआई मॉडल के हिसाब से नहीं सोचना, बिकॉज ओएसआई मॉडल इज जस्ट ब्लूप्रिंट, और ये आपका टीसीपी आईपी मॉडल है, तो सारी डिवाइसेस टीसीपी आईपी मॉडल्स को ही फॉलो करती है, इट्स ओपन स्टैंडर्ड, और ये सभी वेंडर के साथ कंपैटिबल भी है, तो यही मिलेगा आपको। प्लस फायरवॉल आपका क्या चेक कर सकता है, पेलोड। अब पेलोड का मतलब भी सबको पता है, पेलोड इज एक्चुअल डेटा, क्या डेटा ले जा रहे हो। जैसे आप ब्राउजिंग कर रहे हो तो ब्राउजिंग के साथ क्या डेटा आ रहा है, अटैचमेंट आ रहा है ईमेल के साथ, तो वो सारा आपका पेलोड के अंदर आ जाएगा। पेलोड इंस्पेक्शन के लिए फायरवॉल क्या अप्लाई करता है, अलग अलग मैकेनिज्म इसके पास, एंटीवायरस हो गया, यूआरएल फिल्टरिंग, एप्लीकेशन सर कंट्रोल, ये सारा। हाँ जी। जैसे हमारी कोई फाइल है, exe फाइल है, और हमने उसका एक्सटेंशन हम चेंज करके टेक्स्ट फाइल बना के भेजा है, तो क्या फायरवॉल उसको पकड़ेगा सर, इंस्पेक्शन करेगा? फायरवॉल में एक मैकेनिज्म होती है जिसको बोलते हैं हम बेसिकली क्या, कि कितने रैपर तक, कितने मतलब कितने कितने रैपर आप छुपा के ले जा रहे हो एक एक्सटेंशन के अंदर। जैसे मान लो टीएक्सी को आपने टेक्स्ट बता दिया, ठीक है, तो अगर आपने फायरवॉल के अंदर ये इनेबल कर रखा है एक्सटेंशन नॉर्मल खाली, तो वो उसको डिटेक्ट नहीं करेगा, वो खाली एक्सटेंशन ही देखेगा। कुछ फायरवॉल्स होते सर हैं जो ऐसे उसको एग्जीक्यूट करके, हाँ, तो फायरवॉल फेल हो भी हो जाता है। मान लो आपने जिप एसएसएल बना के फेल इंस्पेक्शन किया, अगर इनेबल किया तो सर? एसएल इंस्पेक्शन से तो वो ट्रैफिक जो इनक्रिप्ट है उसको डिक्रिप्ट करके देखेगा। एसएसएल से होता है कि प्रॉपर इंस्पेक्शन करता है, करके देखेंगे एक बारी। आईपीएस में होता है कि बेसिकली जो आपके आईपीएस आते हैं, एडवांस आईपीएस, वो आपके जो है क्या बोलते हैं, प्रॉपरली चेक करके देख पाते हैं। देखो ये सारे फीचर्स हैं फायरवॉल्स में। एसएसएल का मतलब उस फाइल से थोड़ी होता है, उसको थोड़ी वो डिक्रिप्ट करेगा। एसएसएल का मतलब ये है कि आपका जो आपका ट्रैफिक इनक्रिप्टेड है उसको डिक्रिप्ट करके चेक करेगा। हाँ, जो आप ब्राउजर पे एक्सेस कर रहे हो, जो भी 3 वे हैंडशेक हुआ है, उसके बाद में जो डेटा यस, ब्राउजर से जाएगा वो उसको चेक करेगा, ना कि वो फाइल वाले को खोलेगा और चेक करेगा। मेरे ख्याल से तो अलाउ ही इसमें हो सर जाएगा अगर कोई चेंज करके बोलता। फायरवॉल के पास एक्चुअली फाइल एक्सटेंशन चेंज करने के बाद कोई मेथड नहीं है फायरवॉल को रिकॉग्नाइज करने के लिए। मान लीजिए मैंने एक फाइल थी abc.exe, अब आपने क्या किया, abc.txt कर दिया, फायरवॉल को अब या किसी को भी कुछ नहीं पता चल पाएगा। तो बेसिकली क्या होगा कि अब फायरवॉल को ये फाइल एग्जीक्यूट करके देखनी पड़ेगी। अगर ये फाइल एग्जीक्यूट हो जाती है तभी जो है क्या बोलते हैं उसको रिकॉग्नाइज कर पाएगा, लेकिन अगर ये सब करेगा फायरवॉल तो लेटेंसी आएगी। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर आप जिप के अंदर, जिप रैपर के अंदर रैपर करते हो तो वो चीजें फायरवॉल एग्जैक्टली डिटेक्ट नहीं कर पाता। कुछ आईपीएस होते हैं जो डेडिकेटेड मतलब मैलवेयर इंजन्स आते हैं उनके अंदर, जो इन चीजों को वेरीफाई करके देखते हैं, रन करके देखते हैं, तब पकड़ पाते हैं।
सर ये चीज अगर हम जैसे कोई एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है वी ट्रांसफर में अटैच करके थ्रू द वेब ब्राउजर के थ्रू हम उसको ट्रांसफर करते हैं, और उस केस में एसएसएल इंस्पेक्शन इनेबल है, वो तो तब हमारा पकड़ सकता है ना, वो चीजें हो सकती है उसमें। हाँ, तब वो इंस्पेक्शन, एसएसएल इंस्पेक्शन का मतलब ये होता है कि बेसिकली आपका क्या करेगा कि जो पेलोड है, जो डेटा है, उसको डिक्रिप्ट करके देख सकता है। तो अगर आप मोर ग्रैनुलर, मोर थॉरो इंस्पेक्शन कराना चाहते हो तो आप क्या करो, हेडर्स, अब पैकेट्स दो चीजों से मिलकर बनता है, हेडर्स प्लस पेलोड। लेयर 2 लेयर 3 सारे हेडर्स मिलके आपको हेडर्स में नया लिख दिया पेलोड। अब पेलोड को अगर आप चाहते हो कि इंस्पेक्ट करना हो तो नॉर्मली एप्लीकेशंस क्या होते हैं, इनक्रिप्टेड होते हैं। तो ये हेडर्स तो ओपन हो जाते हैं, आईपी हेडर, ये इनक्रिप्ट नहीं होते हैं। जो पेलोड होता है, डेटा होता है, ये हमेशा क्या होता है, इनक्रिप्टेड। अगर आप चाहते हो फायरवॉल को ज्यादा विजिबिलिटी हो तो ये जो इनक्रिप्टेड पेलोड है इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डिक्रिप्ट। और डिक्रिप्ट करने के लिए आप क्या लगाते हो, एसएसएल। तो अगर आप फाइल इंस्पेक्शन या फाइल ब्लॉक या कुछ भी लगा रहे हो इस तरीके की चीजें, तो फायरवॉल को मेक श्योर करो कि उसको पता चले प्रॉपरली, जैसे ये FortiGate के अंदर है। नहीं नहीं, ये कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा सा। अभी जो प्रशांत तू बात कर रहा है ना, वो डेटा की कर रहा है। एसएसएल हम्म। इंस्पेक्शन तुम्हारा दूसरी चीज है। ऐसे वो उसको इसमें इंस्पेक्ट नहीं करेगा जो आप कह रहे हो कि मतलब वी ट्रांसफर लिया, वी ट्रांसफर खोला। वो केवल वी ट्रांसफर को जो तुमने एक्सेस किया है हम्म। उस पर ही काम करेगा, और तुम उसके अंदर फाइल डालोगे। वो उसको इंस्पेक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो डेटा है। अब डेटा के लिए तो और टेक्नोलॉजी आती है ना फिर पीछे। एक्चुअली क्या है कि देखो मैं बता देता डेटा हूँ, में अगर क्या आप एसएसएल, डीएलपी अगर आएगा फिर तुम्हारा पिक्चर अगर आप में। एसएसएल नहीं लगाओगे, मान लो अगर आपने एसएसएल नहीं लगाया, दो केस होगा सिंपली। अगर मान लो आप पीडीएफ ब्लॉक कर रहे हो, अब आपने एसएसएल नहीं लगाया, आप वी ट्रांसफर करोगे, हो जाएगा। क्योंकि फायरवॉल को कनेक्शन बनने के बाद कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्या फाइल जा रही है वो तो चेक ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि सब इनक्रिप्ट होकर लोड हो रहा है, अपलोड हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है। अब आपने बोला एसएसएल लगाना है, लगाया। अब क्या होगा कि हेडर्स के अलावा जो पेलोड आप लोड या अपलोड कर रहे हो, डाउनलोड, वो भी प्रॉपर दिखने लगेगा। तो अब क्या कर देगा, ब्लॉक। एक्सटेंशन को अंडरस्टैंड करना अलग चीज है, पेलोड को अंडरस्टैंड करना एक अलग चीज है। ओके। ये पर पीडीएफ भी सर जब ब्लॉक, वो पीडीएफ को अगर फायरवॉल पता ही नहीं चलेगा कौन सी फाइल है तो वो तो ब्लॉक ही नहीं करेगा, एक्सटेंशन तो मैच करना पड़ेगा ना उसको। और जब हम डिक्रिप्ट करते हैं तो क्या होता है कि उसको जो इनक्रिप्टेड डेटा चल रहा है वो दिखने लगता है। दैट्स इट। यहाँ पे पिक्चर में आएगा डीएलपी इस वाले केस में। क्योंकि क्या होता है डीएलपी कि जब आप कोई भी मतलब जीमेल से या आप फेसबुक से कोई फाइल डाउनलोड करते हो या अपलोड करते हो जीमेल पे या ऑफिशियल मेलिंग बॉक्स पे, तो डीएलपी उसको ब्लॉक करेगा और वो उसका बता यस, सकता है उसके अंदर या फाइल को देख डीएलपी लेगा। आपका क्या है, डेटा लीकेज प्रिवेंशन के लिए अलग से डेडिकेटेड बॉक्स है। सो डीएलपी का कुछ फंक्शन आप क्या कर सकते हो, फायरवॉल में अप्लाई कर सकते हो। जैसे डीएलपी का एक पार्ट है फाइल फिल्टर, तो फाइल फिल्टर फायरवॉल में दिया गया है। नॉट 100%। अब जैसे क्या डीडॉस है, डीडॉस का अलग से डिवाइस आता है। यूआरएल फिल्टरिंग, वेब फिल्टरिंग आप बहुत अच्छी तरीके से चाहते हो प्रॉक्सी लगाओ, उसका अलग से डिवाइस आता है। लेकिन फायरवॉल में क्या हर चीज मिल जाती है। जैसे यहाँ पे आओगे, अब ये डीडॉस पॉलिसीज है, इस पे इनेबल नहीं है, एक सेकेंड। तब आप डीडॉस पॉलिसीज भी लगा सकते हो। अब क्या है बेसिकली, अब अगर आपके पास डीडॉस पॉलिसीज है तो आप कुछ हद तक इस पे ब्लॉक कर सकते हो, बट नॉट 100%। बिहेवियरल डॉस चाहिए, एडवांस डॉस चाहिए, तो आपको फिर डीडॉस का प्रॉपर जो डिवाइस आता है वो लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको अगर पूरा 100% फाइल ब्लॉकिंग चाहिए तो फायरवॉल 100% नहीं दे पाएगा।
बट ये है कि कुछ चीजें आप ब्लॉक कर सकते हो, उसका एक पार्ट दे रहा है। और ये भी तब चलता है जब आप प्रॉपर इंस्पेक्शन फायरवॉल कर पाता है। यहाँ पे आता है अब किन प्रोटोकॉल से आप फाइल को क्या कर रहे हो, लोड करोगे। HTTP बेस्ड है, SMTP मेल के थ्रू भेज रहे हो, रिसीव हो रहा है, आई मैप है, ब्राउजिंग के थ्रू रिसीव हो रहा है, FTP के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, सिफ्ट प्रोटोकॉल है। अब ये प्रोटोकॉल सेलेक्ट करो, या कोई आपका कस्टमाइज प्रोटोकॉल है तो वो सिलेक्ट करो। इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक, फाइल टाइप मॉनिटर करना, ब्लॉक। तो ये फीचर आपको देता है। इट्स वेरी सिमिलर टू DLP बट इट्स नॉट DLP 100% DLP। तो ये सारे फंक्शंस आपको सिक्योरिटी प्रोफाइलिंग के अंदर मिलते हैं। तो ये आपका पेलोड इंस्पेक्शन या डिटेल फायरवॉल इंस्पेक्शंस के लिए यूज होता है। और ये सब नॉर्मली लाइसेंस फीचर्स होते हैं। तो इफ यू हैव अ लाइसेंस देन ओनली यू कैन डू परफॉर्म ऑल दीज थिंग्स, फुल लाइसेंस। IPS सिग्नेचर अपडेट करना, एंटीवायरस, वेब फिल्टरिंग, फॉर्मवेयर एंड जनरल अपडेट्स, फोर्टिकेयर सपोर्ट्स। तो ये सब आपको तभी मिलता है जब आपके पास लाइसेंस हो। बाकी फीचर्स आप इवन विदाउट लाइसेंस यूज कर सकते हो। VPN, नैटिंग, HA कॉन्फ़िगरेशंस, और आपका डेस्टिनेशन मैट, और उसके अलावा आपका जो VPN है, यूजर रिमोट एक्सेस VPN, SD-WAN फीचर्स, ये सारे। ठीक है, चलिए आज के लिए आई थिंक इतना ही करते हैं। और बाकी किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप। इसके इसमें कुछ भी डाउट है तो इट्स ऑल फंडामेंटल डिस्कशन जितना भी हमने किया, ये खाली फायरवॉल्स के इंस्पेक्शंस के रिगार्डिंग था। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है फायरवॉल के अंदर, DMZ, डीमोनेटाइज जोन। तो जो यूजर्स है उनके सेगमेंट को हम अलग रखें, और जो सर्वर्स है उनको अलग रखें। उसके लिए आपके पास क्या है, DMZ नाम का एक लॉजिकल टर्म है, डीमोनेटाइज जोन। वहां पे हम सर्वर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स नॉट फिजिकल थिंग, इट्स जस्ट लॉजिकल। बाकी FortiGate इज टोटली जोन बेस्ड फायरवॉल, सो इट्स वेरी सिमिलर टू पालो अल्टो। बट अगर यहाँ पे जोन नहीं भी बनाओगे तब भी चल जाएगा काम। कोई क्वेश्चन है आज के लिए तो बताइए। नो क्वेश्चन। नहीं सर।